Hi guys, welcome back to the YouTube channel. In today's lecture, we are going to solve a few questions related to partial elasticities and elasticity of substitution. So this is basically your topic from chapter number 16, which is comparative statics. So that is what we are going to do. So these are basically your back problems, back exercise problems from Hammond. So let's see how to proceed with them. So basically, this is one question. This is your question number 6 from exercise 16.4. And the question goes like this. The following system of equation defines y and z as differentiable functions of x. So यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि y जो है that is a function of x. So y is basically y which is a function of x. And here z is also given, which is also a function of x. Okay, what is that form? They haven't told us, but ये बताया हुआ कि y is a function of x and z is also a function of x. That is given to us. ठीक है, ये हमें दे दिया है. And उसके अलावा then there are two equations which are given to us. So दो equations दी हुई हैं हमें. So there are two equations that are given to us, and the equations are like this. So z is equals to e ax plus by. This is one equation, and the other equation is x a y b z c is equals to 1. तो ये दो equations हमें दी हुई हैं, ठीक है? And a b c, they are all positive constant, that is also given to us. And you have to find the elasticity of y and z with respect to x. ठीक है, elasticity of y निकालना है and z निकालना है with respect to x. तो हमारा actually अगर मुझे elasticity निकालनी है, if I have to figure out the elasticity, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to find elasticity of y with respect to x. That is one thing. And also I have to find elasticity of z with respect to x. ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे निकालनी है based on whatever information is given to me. तो अब इस चीज को देखो आप, elasticity of y with respect to x क्या होगा? You will have to find what is dy by dx, right? And then you multiply by x divided by y. This is your formula for elasticity of y with respect to x. This is first thing. Similarly, मुझे अगर elasticity of z with respect to x निकालनी है तो मुझे भी same logic लगाना पड़ेगा इधर. So that is going to be derivative dz by dx times x divided by z. This is what I have to figure out. तो अब मेरा सिंपल टास्क क्या हो गया कि एक्स वाई क्या है वो सब तो चलो ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू निकालनी है. ये कैसे निकालेंगे? यूजिंग वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस हियर. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? ठीक है, तो आप क्या करें, एक चीज तो ये कर सकते हैं हम लोग कि पहले तो बिकॉज all of these are in terms of powers ना, तो if we take log on both sides that will be very helpful for us. Our equation will become very simple. तो we should go ahead and do that. तो आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ log ले लेते हैं. तो if taking log on both sides we get this, and then I have to take log here as well, and then that will give me ax plus by. This is one equation. So log z is equals to log e, और यहाँ पे इसकी पावर है, तो जब भी log के अंदर पावर होती है so basically log m raised to the power n, वो क्या हो जाता है, n comes in front and then you just have log m. So basically log m raised to the power n is nothing but n log m. This is the formula. So we are going to use that here. This will come in front, ये आगे आ जाएगा ax plus by, and then you're left with log e value. Log e actually 1 होता है, ठीक है? So that gives me ax plus by.
log z। तो एक फॉर्मूला, तो एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरे पास, ठीक है, दैट इज वन। एंड उसके अलावा आई हैव टू डू log ऑन बोथ साइड्स देयर एज वेल। सो इफ आई डू दैट, व्हाट डू आई गेट? log x power a, y power b, z power c is equals to log 1। ठीक है, नाउ अगेन यूजिंग द रूल्स ऑफ द लॉग, अगर कोई चीजें प्रोडक्ट में हो लॉग के अंदर, तो वो आप एडिशन के तौर पे सेपरेट कर सकते हो। सो वी कैन राइट इट लाइक log x रेज टू द पावर a प्लस log y रेज टू द पावर b प्लस log z रेज टू द पावर c। log 1 जो होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, सो दैट विल गेट वैनिश्ड। तो इसको जो है आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन यूजिंग द सेम रूल की जो भी पावर होगी हमारी, दैट विल कम इन फ्रंट, सो दिस पावर विल कम इन फ्रंट a। तो दिस एक्चुअली बिकम्स दिस a log x प्लस b log y प्लस c log z, and then that is equals to 0. So these are the two equations which are relevant for me now. इससे चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी, इसीलिए हम लोग इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब इस पूरी चीज को निकालने के लिए मुझे dy by dx चाहिए। आई हैव टू फिगर आउट व्हाट इज dy by dx, ठीक है। तो dy by dx निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है? ये एक इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरी जो पहली इक्वेशन है वो क्या है? log z इज इक्वल्स टू ax प्लस by, ठीक है। और ये करते टाइम आपको दिमाग में ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि जो y है वो x का फंक्शन है, y खुद x का एक फंक्शन है, जैसे इधर बोला गया था कि y और z दोनों x के फंक्शंस हैं। सो y x का फंक्शन है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि z इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। सो while doing that differentiation you should keep this in mind, ठीक है। अच्छा, तो now what are we doing? Differentiating both sides with respect to x। With respect to x we are differentiating। तो जब आप इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे, तो पहले तो log z का डिफरेंशिएशन होगा। log z का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/z। और फिर आप जो z है उसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? dz बाय dx, ठीक है। अब फिर हम लोग राइट हैंड साइड पे आए, ax का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? a प्लस फिर b इज अ कांस्टेंट, b एज इट इज। y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? dy बाय dx। हाँ जी, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई जिसमें मेरे पास जो चीजें मुझे नहीं मालूम वो क्या है? dz बाय dx एंड dy बाय dx। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, व्हाट इज द सेकंड थिंग? द सेकंड इक्वेशन दैट आई हैव हियर इज दिस, ठीक है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग व्हिच आई हैव डन विद द फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगी? वो जो मेरी इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगी। तो क्या होगा? a log x, ये इक्वेशन है, प्लस b log y plus c log z is equals to 0. This is the equation that I have, and I have to differentiate both sides with respect to x. So that's what we are going to do now, ठीक है। Both sides with respect to x we want to differentiate. तो क्या करेंगे? a log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1। तो वो एज इट इज रह गया, प्लस b एज इट इज log y का डेरिवेटिव 1/y, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, प्लस c एज इट इज log z का डेरिवेटिव 1/z, एंड देन जो z है उसका डेरिवेटिव dz बाय dx। ये हो गया, राइट। एंड देन बिकॉज इस तरफ 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं, ठीक है। So this is what we have understood so far। तो मेरी इक्वेशन जो है, अगर मैं उसको अच्छे से लिखूं, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे? दिस इज a बाय x प्लस by dy बाय dx प्लस c बाय z dz बाय dx इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
नाउ कैन यू थिंक व्हाट यू आर सपोज टू डू? हमारा गोल था इलास्टिसिटी निकालना, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर वी डूइंग दैट? वी वांट टू फाइंड दिस, दिस इज व्हाट आवर गोल इज, ये हमारा गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए और इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ये अननोन, ये अननोन, सो दिस वन इक्वेशन विच हैज टू अननोन्स एंड दिस इज अनदर इक्वेशन विच हैज टू अननोन्स। तो आई हैव टू इक्वेशंस विद टू अननोन्स, जिसको मैं अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। उससे मेरे पास dy by dx एंड dz by dx की वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो व्हाट इज द फाइनल थिंग दैट आई हैव हियर? तो अब मैं फाइनली किस सिचुएशन में पहुंची हूँ? तो आप ये देख सकते हो कि जैसे ये जो वैल्यू है dz by dx टाइम्स 1/z, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग a प्लस बी dy by dx ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली मैंने सेम इक्वेशन बस रिपीट कर दिया है। तो अब आप ये देखो कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे ये वैल्यू लिखी जा सकती है। और जब मैं ये चीजें इस इक्वेशन में देखती हूँ तो इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, dz by dx और z। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ, राइट? सो बेसिकली अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं कि सिंस ये वैल्यू होल्ड करती है, दिस इज हैपनिंग, solving the two equations. So right now we are solving the two equations. Solving the two equations. ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू मुझे पता है, दिस इज द वैल्यू दैट आई नो, ये वैल्यू मुझे मालूम है, दिस वन, ठीक है? और मुझे अब इस इक्वेशन में जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है, ax प्लस dy dy by dx प्लस c टाइम्स ये dz डिवाइडेड बाय z, ये वैल्यू को मैं इससे रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है? और फिर मैं इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी dy by dx एंड दैट इंटायर थिंग शुड बी इक्वल टू 0। मैंने ये रिप्लेस किया, ठीक है? तो ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो क्या होता है, a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? प्लस a टाइम्स c प्लस c टाइम्स b dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप सिंपली देख सकते हो कि आपकी पूरी जो इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स सिर्फ यही चीज है। तो यू कैन टेक dy बाई डी एक्स कॉमन एंड बाकी जो चीजें हैं ये और ये आप दूसरी तरफ भेज दो। सो इफ वी डू दैट वी गेट माइनस a बाई एक्स माइनस ए सी, दैट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया और फिर मेरे पास जो चीज बच गई वो क्या है, b डिवाइडेड बाय y प्लस c टाइम्स b, राइट? एंड देन दीज टू थिंग्स आर इक्वल, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। तो मेरी ये dy बाई डी एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे a माइनस ए, एक्चुअली एलसीएम बाद में लेते हैं, पहले अभी ऐसे ही रहने दो, 1/x प्लस सी, और ये जो नीचे डिवीजन में आएगा b कॉमन ले लिया और इधर क्या हो गया 1/y प्लस b कॉमन लिया तो c, दिस इज व्हाट वी गेट, राइट? ये मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, ये मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हो गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है? अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। अब जो है एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे नीचे तो इधर x हो गया 1 प्लस सी टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाय b टाइम्स 1 प्लस सी टाइम्स y डिवाइडेड बाय y, ठीक है? तो अब क्या होगा, ये x तो नीचे आ जाएगा और ये जो y है ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी कि दिस इज माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, y will go on top and x will come down here and then we will be left with this is what we have, right? तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे लिए रेलेवेंट है वो क्या हो गई, माइनस ए बाय बी y by x times 1 plus cx divided by 1 plus cy, this is what we have, ये वैल्यू है मेरे पास। तो इस चीज का हम लोग अच्छे से यूज करेंगे, ठीक है? ये मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है,
ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी फाइन. नाउ आई ऑल्सो हैव टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ डी जेड बाई डी एक्स. डी जेड बाई डी एक्स भी मुझे निकालना है. सो डी जेड बाई डी एक्स 1/z, ये किसकी वैल्यू के बराबर था अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, राइट? a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स. तो जो डी वाई बाई डी एक्स है, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पे ये रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो b dy by dx. So what you can do is plus b and yeah, dy by dx. So if you put dy by dx, what do we get? This 1 plus cy, right? ये हो गया हमारे पास. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो इफ यू डू दैट, व्हाट डू यू गेट? ये b से d कैंसिल हो गया, ठीक है? और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? a and then we have minus ay divided by x and then this entire thing 1 plus cx plus 1 plus cy, ठीक है? एंड इधर 1 by z dz by dx. तो मुझे तो dz by dx की वैल्यू चाहिए, राइट? तो अब क्या करें इसके बाद? तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन डू द फॉलोइंग, which is this. Let's try to simplify it by taking the LCM first. तो अगर आप यहाँ पे LCM ले लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? a और इधर जो है, चलो मान लो a कॉमन ले लिया. a अगर कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया? 1 minus y by x 1 plus cx divided by 1 plus cy. एंड देन सिंस मेरे पास z यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो z आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर z से मल्टीप्लाई कर दो एंड दिस शुड बी dz by dx. So now taking the LCM properly, what do we get? X times 1 plus cy as it is minus y 1 plus cx इधर and then division में x times 1 plus cy. This is what we get. ठीक है? So this is dz by dx and then za and इनको ओपन करोगे तो x plus cxy minus y minus cxy ये हो गया divided by x times 1 plus cy. This is what we get. ठीक है? So यहां से मेरे पास क्या हो गया? These two things get cancelled. This and this get cancelled. And I'm left with za x minus y divided by x times 1 plus cy. This is what I get. And then this is dz by dx value. ये dz by dx value है, ठीक है? तो ये मेरे पास बच गया. So this is my expression for dz by dx. ये मेरा dz by dx का expression है, ठीक है? But my goal was not to find this. My goal was to find the elasticity. मुझे elasticity निकालनी थी. तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए हमें सिंपली ये चीज करनी है. दिस इज माय इलास्टिसिटी फॉर्मूला. तो अब मुझे जो चीजें चाहिए वो एक्चुअली मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है? द थिंग्स दैट आई नीड आई ऑलरेडी हैव, राइट? सो आई वांट टू फाइंड दिस. I want to find this. This is what I want to find. This is what I want to find, right? And okay, sorry. I think, yeah, one page earlier I did this. Yeah, so yes, I want to find this and this. And इसके लिए मेरे पास dz by dx की वैल्यू ये रही. I have this value here. And I also need this dy by dx value, which I already have. इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? बस अब तो चीजें बस रिप्लेस करनी है. तो अब देखो फिर ये इलास्टिसिटी वैल्यू कैसे आएगी? इलास्टिसिटी एक्स वाई इज इक्वल्स टू dy by dx वैल्यू रख दो, या फिर सिंपली एक काम ये भी कर सकते हो. ये देखो, ये dy by dx जो है ना, इधर x से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर y से डिवाइड करोगे, तो वही तो चाहिए था. तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो एक्चुअली क्या बन जाएगा? ये x डिवाइडेड बाय y dy by dx की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस a डिवाइडेड बाय b 1 प्लस cx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cy. और यही मेरा इलास्टिसिटी वैल्यू है, राइट?
So my elasticity actually becomes minus A by B 1 plus Cx divided by 1 plus Cy. ठीक है, ये मेरी elasticity वैल्यू होगी. सिमिलरली मुझे dz by dx चाहिए और मल्टीप्लीकेशन में x by z भी चाहिए. सो x इधर मल्टीप्लाई होगा, ये z इधर मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी चीज बचेगी मेरे पास वो मेरा इलास्टिसिटी नंबर है. सो x डिवाइडेड बाय z dz by dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a x minus y divided by 1 plus cy, and this is my elasticity of z with respect to x, which is a times x minus y divided by 1 plus cy. So this is my expression for elasticity of y with respect to x, and this is my expression for elasticity of z with respect to x. तो ये हमारा हमारा इलास्टिसिटी निकालने का तरीका हो गया जब बहुत सारे फंक्शंस आपस में जम्बल्ड हों या आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं बट यू हैव नो वे टू फाइंड dy by dx. सो यू जस्ट हैव टू यूज द सिंपल रूल्स जो आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, एंड उसी से फिर चीजें मैनिपुलेट करके आपको अल्टीमेटली रिजल्ट पे पहुंचना है. ठीक है, सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, and this is how you have to figure out the elasticities. Okay, I hope you were able to understand, and if it was not clear, anything was not clear, you can post your questions in the comment. I'd be happy to help. So thank you, take care, I'll see you in the next video.